Hello everyone, my name is Prince Verma. In this video, we'll take up a very important topic of climatology, that is climatic zones of the world. So today we are going to discuss the climatic zones of the world. If you look at this topic from the examination point of view, you'll find that every now and then the question related to this topic has been asked in the prelims as well as mains examination. So इस टॉपिक की अगर बात करें तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू क्लाइमेटोलॉजी। तो कोशिश करते हैं इस क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड को समझने की। But before that, let's look at the question that was asked in the year 2024. In the last year itself, there were two questions directly and indirectly that could be solved by the knowledge of climatic zones of the world. जो direct question है वो मैंने already यहाँ पे pick कर रखा है। If you look at this question, बोलता है कि consider the following description. The annual and daily range of temperature is low. Precipitation occurs throughout the year. Precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter. So it has given a description of a climatic zone and it is asking you to figure out which climatic zone it is talking about. दूसरा क्वेश्चन एक 2024 में ही था which was related to Red Sea. Although that question is indirectly related to this topic, but if you have proper knowledge of climatic zones of the world, you can solve that question as well. We'll see that question later on. So let's start with the climatic zones of the world. So let us say this is your globe. Let me take a hypothetical continent on that globe. Let's say this is some hypothetical continent on the globe, and this is surrounded by the water bodies. क्योंकि अपने को पता है कि जो फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हैं ग्लोब पर या अर्थ एज अ सिस्टम पर, दे आर दी कॉन्टिनेंट्स एंड दी ओशन। तो इस कॉन्टिनेंट को लेट मी टेक दिस आउट, दिस कॉन्टिनेंट, लेट्स से कि दिस इज द कॉन्टिनेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं इसको भी एक हेमिस्फेयर का प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो लेट्स से दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर। Let me divide this entire continent into different climatic zones. So, I generally discuss in my class 13 climatic zones. So, let me write those numbers. फिर मैं उसका naming बाद में करूँगा. And in this video, I think we would be in position to take up 5, 6, 7 climatic zones. Briefly that too. Will not take up in much detail. जो कॉन्सेप्ट्स है मैं उसको समझाऊंगा, बट जितना डिटेल में हम लोग उसको क्लास में डिस्कस करते हैं उतनी डिटेलिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। तो इफ यू वांट दैट वीडियो टू बी डिस्कस्ड इन डिटेल, तो आई हैव टू टेक अप ईच एंड एवरी क्लाइमेटिक जोन सेपरेटली। बट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दिस इज द कॉन्टिनेंट एंड दिस कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय द oceanic body, and this line represents 10 degree north and south latitude, and this entire zone, I am giving this
नंबर 1। दिस इज क्लाइमेटिक जोन नंबर 1। इसका नाम मैं बाद में दूंगा, बट अभी नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग। अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स जो पॉसिबल है और सरफेस पे, उसको हम लोग अभी ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा क्लाइमेटिक जोन आई टेक अप टू 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। एंड मैं इस क्लाइमेटिक जोन को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड करूंगा। एंड लेटर ऑन विल सी दी डिफरेंसेस एज वेल, कि कैसे वो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। Then I'll take up 45 degree north and south, and इसका naming I'll start from left side 5, 6 and 7. फिर I'll take up to 60 degree north and south. इसका भी नेमिंग आई स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं नेमिंग लेफ्ट राइट से क्यों कर रहा हूं। आई गिव इट 8 नंबर, 9 नंबर, 10 number and 11. From 60 to 70, I'll take up another climatic zone in both the hemisphere. That is why I'm writing north and south. This is 12 number climatic zone, which is uniformly distributed throughout the globe. And this is another climatic zone number 30. So in all, I'll discuss 13 climatic zones across the globe. So let's see them one by one, starting with number 1 climatic zone. One climatic zone, I'll write the name for you for now. Since it is found in the equatorial region, so I'm writing equatorial wet climate. Later on you'll understand कि मैंने इसको ऐसे नाम क्यों दिया। इक्वेटोरियल रीजन में ये तो दिख रहा है सबको, क्योंकि 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल तो है। वेट क्यों बोला, आई डिस्कस दैट लेटर ऑन। जैसे ही डिस्कशन होगा वो आप समझ में आ जाएगा कि हम लोग इसको वेट या मॉइस्ट भी बोल सकते हैं। तो एनीवे, वेट क्लाइमेट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। सो इक्वेटोरियल रीजन में इफ यू लुक एट, see, you need to understand that whenever we talk about climate, two prominent properties of climate will focus upon. क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम लोग फोकस करेंगे। एक तो टेम्परेचर को, और सेकंड रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन को। So these two properties are the most important properties defining the climate of a region. अगर आप कोपेन का क्लाइमेटिक डिवीजन पढ़ेंगे तो ही हैज आल्सो फोकस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन ऑर्डर टू डिवाइड द डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। टेम्परेचर और रेनफॉल को हम लोग देखेंगे कैसे वेरिएशन है टेम्परेचर और रेनफॉल में अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो इक्वेटोरियल वेट क्लाइमेट हमने बोला कि आई एम टेकिंग इट फ्रॉम 10 डिग्री north to 10 degree south. This is the latitudinal extent of the equatorial wet climate. देखते हैं इस बेल्ट में, इस क्लाइमेटिक जोन में क्या हो रहा है। तो पहला पैरामीटर विल फोकस ऑन टेम्परेचर, की टेम्परेचर में क्या हो रहा है इस क्लाइमेटिक जोन में। तो टेम्परेचर किसी भी बॉडी का अर्थ सरफेस पे होने के लिए द प्राइमरी सोर्स इज द सनलाइट। So if you look at this climatic zone, this belt, you'll realize कि sun rays are either vertical or nearly vertical in this zone.
क्योंकि सन का जो मूवमेंट है दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जब 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ हम जाते हैं तो सन या तो वर्टिकल है या थोड़ा सा टिल्टेड है, नियरली वर्टिकल है वो सन रेज। तो इट मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर सनरेज नियरली वर्टिकल और वर्टिकल होने की वजह से will remain throughout the year very high. तो टेम्परेचर remains very high throughout the year. Throughout the year क्योंकि या तो इक्विनॉक्स की पोजीशन में एकदम वर्टिकल होगा इक्वेटर के ऊपर, या अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी चला जाएगा तो भी समवॉट वर्टिकल होगा, बहुत स्लैंटेड नहीं होगा, बहुत टिल्टेड नहीं होगा। तो टेम्परेचर रिमेन्स हाई, वेरी हाई थ्रू आउट द ईयर। अगर मैं आपको फैक्ट्स देना चाहूँ तो टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर remains between 25 to 27 degree Celsius in this zone. And temperature measurement के लिए we take up in consideration two very important parameters. One is diurnal range of temperature and another is annual range of temperature. डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि डे और नाइट में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि हॉटेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो इफ यू लुक एट दिस जोन, इक्वेटोरियल जोन, which is lying between 10 degree north to 10 degree south, जहां पे सनरेज या तो वर्टिकल है या ऑलमोस्ट वर्टिकल है, तो अगर आप एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखोगे तो दिन का लेंथ एंड नाइट का लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल, लगभग 12 घंटे के आस पड़ोस में रहेगा। तो दिन बहुत गर्म नहीं हो पाएगा, रात बहुत ठंडी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 12-12 घंटे दोनों काम हो रहा है। तो डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर में बहुत चेंज नहीं आएगा। तो डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर ओवर हेयर वुड बी लो। क्यों लो? क्योंकि दिन भी लगभग 12 घंटे का, रात भी लगभग 12 घंटे की। दिन अगर बड़ा हो जाता तो हीटिंग देर तक होती तो टेम्परेचर बढ़ जाता, बट हो क्या रहा, जितनी देर हीटिंग हो रही है रात में उतनी देर कूलिंग हो रही है। तो डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर, difference in the temperature of day and night is not very high, so that is why I'm writing low. Similarly, annual range of temperature, annual range of temperature मतलब विंटर अगर मैं देखूं, विंटर में सबसे कोल्डेस्ट मंथ होगा, समर में सबसे हॉटेस्ट या वार्मेस्ट मंथ होगा। यहाँ पे विंटर और समर जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि सनरेज तो ऑलमोस्ट वर्टिकल है या कंप्लीटली वर्टिकल है। सीजनैलिटी का बेस्ट मैनिफेस्टेशन इज द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, बट यहाँ पे दो डे एंड नाइट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो इसलिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी बहुत हाई नहीं होगा, रादर इट वुड बी लो। तो बोथ diurnal range of temperature as well as annual range of temperature would be low. अगर इन दोनों में कौन बड़ा है, तो अगर उसके लिए मैं आपको फैक्ट्स दे दूं तो diurnal range of temperature is greater than annual range of temperature. मतलब there is actually no concept of weather over here. अभी कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे कभी भी ठंडी का सीजन है। नाइट वुड बी द फीलिंग ऑफ विंटर एंड डे वुड बी द फीलिंग ऑफ समर। तो वो सीजन वाली फीलिंग आपको डे नाइट में आएगी, इसलिए डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर।
सो ये तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो गया इस क्लाइमेटिक जोन में। लेट्स सी द प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को क्या हो रहा है। So when we talk about rainfall in this zone, I said that this equatorial zone is under the influence of intense heating due to sun rays being either vertical or almost vertical. सन रेज या तो वर्टिकल है या लगभग वर्टिकल है। तो इंटेंस हीटिंग होगी इस जोन में। इंटेंस हीटिंग होगी तो सरफेस से वाटर वेपर विल राइज एंड दिस वाटर वेपर विल कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। जैसे जैसे ऊपर उठेगा कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होके क्लाउड बनेगा। तो मॉर्निंग में हीटिंग शुरू हुई, आफ्टरनून 3-4 बजे तक हीटिंग हुई सरफेस की, क्लाउड फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली हुआ एंड 3-4 बजे इतना क्लाउड बन जाएगा कि नाउ इट इज रेडी टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जो क्लाउड बन रहा है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, वो इतने हैवी हो गए कि नाउ दे आर रेडी टू फॉल अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो रेनफॉल will happen on a daily basis around 3-4 p.m. सुबह से हीटिंग होगी दोपहर तक, आफ्टरनून तक एंड 3-4 बजे तक इतना डेंस क्लाउड फॉर्मेशन हो जाएगा कि दी ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर आर हैवियर इनफ टू फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसी को रेनफॉल बोलते हैं। तो डेली 3-4 बजे यहाँ पर रेनफॉल होगा, कन्वेक्शनल रेनफॉल होगा। इस टाइप की रेनफॉल को कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं। So it will experience convectional rainfall on a daily basis. और अगर डेली रेनफॉल हो रहा है तो डोंट यू थिंक एवरेज एनुअल रेनफॉल would be very high? Let me write that. Average annual rainfall is as high as 200 to 250 centimeter. So this area will receive huge amount of rainfall of around average annual rainfall 200 to 250 centimeter. So this was about the equatorial wet climate. अभी मैं vegetation पे बात नहीं करूँगा क्योंकि that is altogether a different discussion and moreover we have a paucity of time. हमें 1 घंटे में इस discussion को खत्म करना है। Now let's come to the second climatic zone. आप बोलोगे सर सेकेंड का स्टार्टिंग यहाँ से क्यों किया? तो लेट मी गिव यू एन आइडिया कि मैं राइट से सेकंड को क्यों ले रहा हूं। तो इस एरिया में अगर आप देखोगे तो ईस्टर्लीज ब्लो करती है। तो क्योंकि ईस्टर्लीज विल बी ऑनशोर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, तो इसलिए मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि एक्सप्लेन करना इजी होगा। सो सेकेंड आई एम टेकिंग, अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज ट्रॉपिकल रीजन, तो इसलिए पहले ट्रॉपिकल लिख देते हैं। वेट के बजाय मैं इसको ह्यूमिड लिखूंगा। यू कैन कॉल इट ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल। आई शो यू व्हाई इट इज सब ट्रॉपिकल। ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है 10 डिग्री से 30 डिग्री, तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल का ट्रांजिशन जोन है, तो इसलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल बोथ कुड बी रिटन। ह्यूमिड है, वेट नहीं, इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, तो इसलिए ह्यूमिड है, सीजनल रेनफॉल होगा। विल सी दैट व्हाई सीजनल रेनफॉल, ह्यूमिड क्लाइमेट। तो लेट्स सी मैं क्या बोल रहा हूं कि आई एम टेकिंग अप दिस पार्ट, ये मेरा 1 था, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट which is up to 30 degree north and south both. क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, सेकेंड
belt, second climatic zone is in tropical region, so temperature would be high, but obviously lesser than equatorial wet climate, उससे कम होगा, but even then temperature would be high. If I give you some fact, the coldest month average temperature would be higher than 18 degree Celsius. मतलब even the coldest month का average temperature will not go below 18 degree Celsius. Anyway, so temperature will remain high क्योंकि tropical zone में अपने को पता है tropical zone के बीच में ही sun का vertical movement है, तो temperature remains high. Let's see what is happening to the precipitation. Precipitation देखते हैं. सर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब सन वर्टिकली ओवरहेड होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, तो इस एरिया में समर का पीक होगा. अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करूं तो 21 जून को या जून के सेकेंड हाफ में नॉर्थ में समर का पीक होता है. तो इट मीन्स इन द सेकेंड climatic zone will see summer as well as winter. तो देखते हैं समर में क्या हो रहा है. समर में जैसे जैसे सन इक्वेटर से ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ बढ़ेगा, अगर मैं नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात करूं, तो ये जो प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर यहाँ पे था और यहाँ पर लो प्रेशर था, दिस विल स्टार्ट मूविंग नॉर्थवर्ड, क्योंकि अपने को पता है विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन द प्रेशर बेल्ट्स आल्सो शिफ्ट. सो ये हाई प्रेशर विल कम समवेयर अराउंड 45 और 40 डिग्री. अगर मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ दोनों में सेम केस होगा, बट अभी वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्थ. तो ये जो हाई प्रेशर है, सिमिलरली दिस लो प्रेशर विल कम समवेयर अराउंड 15 डिग्री नॉर्थ. दिस वुड बी न्यू हाई प्रेशर, न्यू लो प्रेशर. जैसे जैसे सन मूव करेगा, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो ईस्टर्लीज ब्लो कर रही है समर में, दे आर गोइंग टू बी ऑनशोर, क्योंकि विंड्स इस ओशियानिक रीजन से मॉइस्चर पिक करेंगी एंड दिल कॉज रेनफॉल ऑन दिस ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट विच इज द सेकेंड क्लाइमेटिक जोन. तो समर में इट विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम रेनफॉल. सिमिलरली विंटर में क्या होगा, अगर इसका विंटर देखो मैं नॉर्थ का, तो सन वुड बी इन दी सदर्न हेमिस्फेयर, और सन अगर सदर्न हेमिस्फेयर में होगा तो प्रेशर बेल्ट्स जो हैं, जो ये हाई प्रेशर है, दिस विल शिफ्ट साउथवर्ड सन के साथ में. तो ये समवॉट यहां पर आ जाएगा हाई प्रेशर, और ये लो प्रेशर जो यहां पर था, दिस विल मूव फर्दर साउथवर्ड. तो अब विंड्स ऐसे ब्लो करेंगी 15 डिग्री से, तो बहुत छोटा सा पोर्शन विल एक्सपीरियंस रेनफॉल, क्योंकि ये 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ तक है, तो ये पोर्शन बहुत स्मॉलर पोर्शन. तो मिनिमम रेनफॉल, लीस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल. तो रेनफॉल is prominently seen in the summer season. तो throughout the year I cannot say कि it is experiencing rainfall, थोड़ा बहुत रेनफॉल. आपको पता भी है, इसी को हम लोग ट्रॉपिकल मॉनसून भी बोलते हैं. दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट. अगर आप इंडिया का क्लाइमेट देखिए
So same thing is happening. Summer may we experience huge amount of rainfall. Nearly 70% of the rainfall is experienced in summer season. Remaining 30% is in other parts, other time period of the year. Anyway, so throughout the year rainfall नहीं हो रहा है. Temperature is very high throughout the year, but there is concept of seasonality. समर और विंटर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि विंटर तब जब सन सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ में विंटर, सन जब नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो नॉर्थ में समर. तो समर और विंटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर वुड बी वेरी हाई. Annual range of temperature is very high. Yes. Anyway, let's come to third one. थर्ड मैंने जो लिया है मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ. This one climatic zone, two climatic zone, and let me take this as the third climatic zone. थर्ड का और फोर्थ का अंडरस्टैंडिंग अपन जो हमने सेकंड में किया उसी से समझ जाएंगे. लेट्स सी. समर में मैंने बोला था कि दिस हाई प्रेशर विल शिफ्ट अप टू 45 डिग्री. यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा समर में. तो और लो प्रेशर विल कम समवेयर है. तो इस तरीके से रेनफॉल हो रहा था. यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल हुआ. कॉन्टिनेंट से जब स्ट्राइक करेगा तो बारिश शुरू हो जाएगी. यहाँ पे रेनफॉल हो गया. बाई द टाइम दिस विंड, दिस मॉइस्चर लैडन विंड रीचेस to third climatic zone, it has already shed large amount of its moisture. तो यहाँ पर relatively बारिश कम होगी. तो third climatic zone, let's call it tropical grasslands. Tropical grassland climate. क्यों? क्योंकि सेकेंड से थर्ड में बारिश कम हो रही. तो टेम्परेचर तो थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट जो सेकेंड में है वही रहेगा, बट प्रेसिपिटेशन विल वेरी. सो टेम्परेचर अगर मैं पहले लिखूं तो इट इज समवॉट सेम एज दैट ऑफ द ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट. बट हाउ अबाउट द प्रेसिपिटेशन? Precipitation is lesser compared to the second climatic zone. क्यों? क्योंकि winds जो onshore यहाँ पर थी, they have already caused rainfall in this zone, और इस zone में rainfall करने के लिए they have released a lesser amount of moisture. तो इसलिए rainfall कम होगा. Make sense? और इसीलिए ग्रासलैंड बनाएंगे क्योंकि दे डू नॉट हैव द इनफ मॉइस्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज. तो इसीलिए ग्रासलैंड्स फॉर्म करेंगे. ट्रीज वुड बी प्रेजेंट बट वो बहुत स्कैटर्ड होंगे. मेक सेंस? तो प्रेसिपिटेशन इज लेसर. सिमिलरली फोर्थ को अगर मैं बोलूं तो ट्रॉपिकल रीजन में है. कैन आई से इट इज अ डेजर्ट रीजन, क्योंकि फोर्थ में रेनफॉल तो लीस्ट हो जाएगा. क्योंकि यहाँ जो रेनफॉल यहाँ पे मैक्सिमम, सेकंड में मैक्सिमम, थर्ड में उससे कम, फोर्थ में तो देर इज नथिंग लेफ्ट इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर टू कॉज रेनफॉल इन दी ट्रॉपिकल डेजर्ट एरिया. तो इसलिए प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल लीस्ट होगा. हार्डली एवरेज एनुअल रेनफॉल वुड बी लेस देन 25 सेंटीमीटर. इसलिए दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. टेम्परेचर वुड बी समवॉट सेम एज दिस ओनली, क्योंकि सब ट्रॉपिकल रीजन है. सन का मूवमेंट इज सेम, बट प्रेसिपिटेशन is depending on whether the wind is onshore or offshore.
तो अगर ट्रॉपिकल डेजर्ट में आप देख रहे हैं तो समर में जिस जिस टाइम पे बारिश हो रही है, विंड्स आर ऑफ शोर. Offshore means they have already shed their moisture. They are moisture deficient. Let's move to the next, fifth climatic zone. This was 1, this was 2, 3, 4. This is fifth climatic zone. Do remember this was up to 30, this was up to 45 degree north and south. If you look at this fifth climatic zone, let me give the name to it, Mediterranean type climate. Because the best representative of this climate is the areas around the Mediterranean. इसलिए इसको नाम दिया गया Mediterranean type of climate. Anyway, let's see what is happening here. Again, question हो सकता है कि sir why fifth number is starting from the west? तो again, जो लॉजिक हमने यहाँ यूज किया था कि यहाँ ईस्टर्लीज प्रिवेल करती हैं. सिमिलरली इन दिस जोन वेस्टर्लीज डोमिनेट. अगर आपको विंड सर्कुलेशन, एयर सर्कुलेशन याद है तो यहाँ पे वेस्टर्लीज डोमिनेंट होंगी. और अगर वेस्टर्लीज डोमिनेंट है, फिफ्थ रीजन को ध्यान से देखिएगा. लेट मी ड्रॉ इट सेपरेटली. देखते हैं समर में क्या हो रहा है. फिफ्थ रीजन को देखिएगा. लेट मी ड्रॉ इट ओवर है. दिस इज फिफ्थ. दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. समर में आई सेड कि जो हाई प्रेशर बेल्ट यहां पर 30 पे है, दिस विल रीच ओवर है. यही किया था हमने. एंड लो प्रेशर बेल्ट reaches somewhat around 10-15 degree. So winds will blow from high to low. So winds are blowing from high to low. तो यहाँ पे समर में it is experiencing easterlies wind. And easterly अगर आप देखोगे तो these easterlies जो इस साइड से ब्लो कर रहे हैं, इस पार्ट पे तो ऑनशोर हैं, बट इस पोर्शन के लिए ऑफशोर हैं. तो ईस्टर्लीज आर ऑफशोर टू फिफ्थ क्लाइमेटिक जोन, जिसको हम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोल रहे हैं. क्योंकि ये विंड्स यहां पर तो रेनफॉल करेंगी, यहां पर ये रेनफॉल करेंगी इस एरिया में, बट फिफ्थ में तो नहीं करेंगी क्योंकि तब तक ये मॉइस्चर सारा शेड हो चुका होगा. तो ईस्टर्लीज आर ऑफशोर. विंटर में देखते हैं क्या हो रहा है. विंटर में अगर आप ध्यान से देखेंगे 10 डिग्री, ये 2, 3, 4, हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. 6, 7. ध्यान से देखिए फिफ्थ में विंटर में क्या होगा. जो हाई प्रेशर यहां है, दिस विल शिफ्ट फर्दर डाउनवर्ड्स समवट यहां, और लो प्रेशर वुड बी शिफ्टेड साउथ ऑफ इक्वेटर समवट यहां. और यहां पर हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर होता है, सब पोलर लो प्रेशर. winds will blow from high pressure to low pressure. ये wind तो रहेंगी, but this wind will impact this fifth climatic zone. ये जो wind blow कर रही है, this would be onshore on this part of the continent, which is the fifth climatic zone. So इसलिए winter में westerlies, ये ध्यान से देखिए westerlies है, westerlies are onshore
which will cause rainfall. तो विंटर में रेनफॉल और समर में ऑफशोर विंड्स हैं, तो ड्राई सीजन. यस. लेट्स लुक एट दी सेवेंथ नंबर. अब तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इस सेवेंथ पे, सिक्स एंड सेवेंथ पे, सेवेंथ में बारिश होगी समर में, सिक्स्थ में ग्रासलैंड लाइक फीचर आएंगे. यस. नाउ लेट्स लुक एट द एट्थ नंबर. This is 10 degree. This one is 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is 8. This is how we have divided already. Let's see what is happening in summer. Summer में अभी हमने देखा कि easterlies are offshore to this part of the continent. Summer में this is 30 degree, this is 45 degree, this is nearly 60 degree. समर में ईस्टर्लीज ऐसे ब्लो कर रही है. दिस इज समर. ध्यान से देखिए यहां पर हाई प्रेशर है, समवॉट यहां लो प्रेशर होगा. वेस्टर्लीज तो अभी भी यहां पे ब्लो करेंगी. सो दिस 8 नंबर क्लाइमेटिक जोन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्लीज. फिफ्थ नंबर नहीं, but this 8 number is under the influence of westerlies. तो समर में westerlies are onshore causing rainfall. Similarly winter में क्या हो रहा था? Winter में already you have seen this is onshore. ये बात तो यहाँ पे तो 8th नंबर है. तो winter में again westerlies are onshore rainfall. So can I say throughout the year rainfall is there? And this type of climate, 8th number climate, is named as temperate wet climate. Temperate क्यों? क्योंकि temperate zone में, yes or no? तो temperate wet climate, or this is also named as marine west, क्योंकि ये marine region में, west part of the continent, wet climate or moist climate. Yes. और क्योंकि ये वेस्टर्न पार्ट में है, यहाँ ओशन है, तो यहाँ पे मैरीटाइम इफेक्ट होगा. तो मैरीटाइम इफेक्ट होगा तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज डायोर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू मैरीटाइम इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा. तो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. बाकी क्लाइमेटिक जोन्स को विल टेक अप लेटर. तो एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो. ये कहाँ पे दिखा अपने को? इक्वेटोरियल रीजन में प्लस मेरीन वेस्ट मॉइस्ट क्लाइमेट में, जो हमने 8th नंबर लिया था. प्रेसिपिटेशन अकर्स थ्रू आउट द ईयर, दोनों में. प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250. ये इक्वेटोरियल में नहीं है. दिस इज हैपनिंग इन दी मरीन वेस्ट टाइप क्लाइमेट. क्यों? क्योंकि ध्यान से अगर आप देखोगे तो इस रीजन में समर में रिलेटिवली कम बारिश होगी, विंटर में दिस वुड बी मोर स्ट्रॉन्गर. तो इसलिए एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा दैट वुड बी वेरी हाई इन दिस जोन.
So D for Delhi is the answer to this question. So this is all for this topic. We'll take up the remaining topics later on. Thank you so much. Have a great day.